Good morning, everyone. Today's our topic is work, energy, and power. So, first of all, I will explain to you work. So, what is work? Work is said to be done when the point of application of the force moves in the direction of the force. Okay? It means the work is said to be done when the point of application of the force moves in the direction of the force. Then we said the work is done. For an example, suppose that if we take a block placed on a table like this and we apply some force F vector in this direction on this point. So due to this force, if the position of the object changes, सपोज दैट इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फाइनल आपकी यहाँ आ गई, ठीक है, वर्क आप फोर्स आपका भी लग रहा है. सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेक्टर डी. सो व्हेन देन वी सेड द वर्क इज डन. ओके, सो व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट, in this figure force is constant. So how can we find the work done? Basically, work is a scalar quantity and it is defined by the dot product of force and displacement. And you should also find the direction. So in this point, F dot D means F into D into cos theta. And in this figure, the value of theta is 0. So we get F into D. So basically, we find work done by the dot product of force and displacement vector. Okay. Second thing, suppose that if we apply constant force on an object, but the direction of the force is not same as the direction of displacement, like this. Suppose that if we apply this force vector on this block and due to this force it moves in this direction. Okay, so the displacement vector is this. At this situation, the angle between displacement direction and the force direction, suppose that theta. Okay, so work is equal to F dot D. So when we open the formula of dot product, then we get F into D into cos theta. In this part, यहाँ पर आपका जो F D cos theta है, आप इसे F cos theta into D से भी लिख सकते हैं. तो जो ये F cos theta है, ये बेसिकली है क्या? अगर मैं इस फोर्स वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करता हूँ तो ये पार्ट आपका हो जाएगा F cos theta और ये पार्ट आपका हो जाएगा F sin थीटा. सो बेसिकली हम लोग जब यहाँ पे वर्क डन फाइंड कर रहे हैं तो F cos थीटा एंड वेक्टर D जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ से ये पॉइंट बहुत इजीली क्लियर हो रहा है साफ साफ कि फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. अब जैसे F sin थीटा हम लोगों ने क्यों नहीं लिया? बिकॉज F sin थीटा की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए F sin थीटा को इस वर्क में यूज़ नहीं करेंगे. ओके, तो जो बोल सकते हैं द कंपोनेंट F y डज नॉट वर्क एज द बॉडी डजेंट मूव अप और डाउन. सो ऑल द वर्क इज डन बाय द कंपोनेंट F x. ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा वर्क का. अब इसके फिजिक्स में एप्लीकेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फिजिक्स में हमारे वर्क के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? अभी तो ये कांस्टेंट फोर्स के ड्यू टू हमने बताया. अब सपोज दैट कि आप कॉन्टीन्यूसली फोर्स की वैल्यू को वेरी करा रहे हैं. तो अगर आप फोर्स को कॉन्टीन्यूसली वेरी करा रहे हैं तो ये किस टाइप में वर्क करेगा, ज़रा देखते हैं. तो सपोज दैट अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करें, सो इन एक्स एक्सिस यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है और इस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपने फोर्स को प्लॉट करना है. ओके,
तो सपोज दैट इनिशियली बॉडी जो थी वो S1 पोजीशन पे प्लेस थी हमारी, ठीक है, और उस पर जो वर्क हमारा हो रहा है, सपोज करिए कि फोर्स जो था वो वेरी कर रहा है लाइक दिस, और फाइनली ये S2 पोजीशन पे हमारी आ गई। इनिशियल पोजीशन S1, फाइनल पोजीशन S2। ओके, सो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेरिएबल क्वांटिटी इन दिस केस। सो टू फाइंड द वर्क डन, first of all we take a small strip which is parallel to force direction. So if the strip is very thin, so suppose that this displacement is infinitely small, so this displacement taken by us is ds, okay, and the thickness of the strip is very small, so we neglect this slant portion. So suppose that at this point the force value is Fx. The force value is Fx. Okay. So the area of this strip. What is the area of this strip? F into ds. And force into displacement is also called work done. So this work is very small. So we represent it by dw. Okay. And the Fx and the x component is f cos theta ds. So this is the value of dw. This work is done by the external agent for a very small displacement ds. Okay, ये हम लोग ने क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमारा फोर्स वेरिएबल था, कांस्टेंट नहीं था. सो द टोटल वर्क, हाउ कैन वी फाइंड टोटल वर्क? Total work to displace the object from S1 to S2. So we can find this total work by integrating dw with the lower limit S1 and the upper limit S2. आप इस स्ट्रिप को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये स्ट्रिप आपकी इस लिमिट पे जाएगी, लेफ्ट लिमिट S1 एंड राइट लिमिट S2 तक जाएगी. इसीलिए मैंने इसे S1 से S2 तक इंटीग्रेट कर लिया. और अगर आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? F इंटू कॉस थीटा इंटू डी एस. सो द वर्क फॉर्मूला इज S1 इंटीग्रेशन ऑफ F कॉस थीटा डी एस फ्रॉम S1 टू S2. और ये आप जानते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन force vector and displacement vector. So we can also rewrite it vector F dot ds vector from S1 to S2 इंटीग्रेशन. ठीक है. फोर्स आपका जब कांस्टेंट था तो आपने फिगर, ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता? अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट होता तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, दिस इज द फोर्स एक्सिस. फोर्स आपका कांस्टेंट है तो आप फोर्स को ऐसे शो करते. इनिशियल पोजीशन सपोज करिए S1, फाइनल पोजीशन सपोज करिए S2. ओके, देन दिस एरिया रिप्रेजेंट द वर्क डन. सो इस केस में आप डायरेक्टली लिख देते F cos theta into delta S. Delta S is this distance. Okay, and this one is Fx. ठीक है. तो आप इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, अगर आपका वेरिएबल फोर्स आपका वर्क कर रहा है तो इस टाइप में आप सॉल्व करेंगे वर्क डन, और अगर कांस्टेंट फोर्स है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमारा टोटल वर्क डन शो करता है. जैसे ये फुल एरिया टोटल वर्क डन हमारा शो करेगा. सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एरिया टोटल वर्क डन शो करेगा. ठीक है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम जानते हैं, तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो. वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो. वाई? बिकॉज when an object moves in a circular path, suppose that like this, so at this point the direction of centripetal force is this and the displacement direction is this. Okay, so the centripetal force is along the radius towards the center and the displacement is along the tangent.
Okay, clear? Since the angle between the radius and the tangent is 90 degree, so when we find the work done, F into D into cos 90, and the value of cos 90 is 0. So total work done is 0. Okay, so by this way we can say that the work done by the centripetal force is always 0. Similarly, suppose that एक पर्सन है जो अपने हेड पर कोई वेट लेके चल रहा है, पर्सन अपने हेड पर कोई वेट लेके चल रहा है, तो उस कंडीशन पे जो पर्सन होगा अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया सपोज दैट एक्स। ठीक है, तो उस कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, बट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये कहाँ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड। सो द डायरेक्शन ऑफ वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल। सो द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेट इज 90 डिग्री। सो वर्क डन ड्यू टू वेट, वर्क डन ड्यू टू वेट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है, 90 है। सो वर्क डन बाय द वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप में आप इसके एप्लीकेशंस देख सकते हैं। होप कि वर्क डन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम इसकी और थोड़ा डिस्क्रिप्शन लें तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट is joule or kg meter square upon second square, and the dimension is ml2 t minus 2. I hope कि ये क्लियर हुआ होगा। ओके देन।